Dear children, today we will discuss articles. So this topic on articles, it is not something new to you. You already know it. You have studied about it in your previous classes. But again today we will discuss about them in this video class because I fear that you might have forgotten. You have the habit of forgetting the things that you learn in your classes. So what you should first know about the articles is the three words a, an, and the are called articles. This you know. So these three little words a, n, and the, they are called articles. ये जो छोटे छोटे तीन शब्द है ए, एन और द को हम articles कहते हैं. Then articles are words that define a noun as specific or unspecific. So it means the noun we are talking about or the person or thing that is talked about is any person or thing about which we do not have much idea, or it is about a particular or specific person or thing about whom or which we have some idea, or about which or whom we already know. You see, let us consider the following examples. So with these examples you will have a better idea about what I am trying to say. You see, sentence 1, I ate an apple. Sentence 2, I ate the apple. तो इस सेंटेंस में, इस दो सेंटेंस में क्या फ़र्क है? तो आप लोगों को लग रहा है दोनों सेंटेंस में सिर्फ एन और द का फ़र्क है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है. So sentence 1 says I ate an apple. So it means you don't have much idea about the apple that you ate. It could be any apple. The apple is not specified. कौन सा exactly कौन सा apple है उसके बारे में नहीं बताया गया. लेकिन sentence तो I ate the apple. तो इसमें क्या है कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बोला जा रहा है. तो यहाँ में क्या है, हम लोगों को एक आइडिया मिलता है कि एक खास एप्पल को खाया गया है. The apple is specified here. Suppose, take an example. Your mother keeps an apple in the fridge. After some time she opens the fridge and finds the apple missing from there. On inquiry you submit that I ate the apple. मम्मी फ्रिज में एप्पल एक रखती है, कुछ समय बाद देखती है तो वहाँ एप्पल नहीं है, तो पूछने पर तुम बोलते हो कि आई एट द एप्पल. तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बोल रहा है. जब हम लोग बोलते हैं आई एट द एप्पल, तो वो पर्टिकुलर एप्पल जो फ्रिज में रखा था उसके बारे में बोल रहा है जब हम लोग द यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि आई एट एन एप्पल, तो उसमें हम लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कौन सा एप्पल है. ये है डिफरेंस दोनों सेंटेंस में. तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, जो यहाँ पर लिखा है, अभी का जो एग्जांपल दिया उसी के बारे में बताया है. सो बेसिंग ऑन व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस नाउ, द आर्टिकल्स is divided into two. That is why articles are divided into two. Articles दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. The first one is indefinite article. Indefinite articles. तो indefinite articles का अंदर में आता है a और n, और दूसरा है definite article, और definite article का अंदर में आता है article the. So ये है दो ग्रुप जिसमें आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है. देन नेक्स्ट, आर्टिकल्स आर एमोंग द मोस्ट कॉमन डिटर्मिनर्स. तो आर्टिकल्स को एक तरह का डिटर्मिनर्स माना गया है. तो ये डिटर्मिनर्स क्या है एग्जैक्टली? सो दिस यू विल लर्न इन योर नेक्स्ट और हायर क्लासेस. बट फॉर टुडे और एज ऑफ नाउ इट इज़ इनफ फॉर यू टू नो दैट आर्टिकल्स आर एमोंग द डिटर्मिनर्स. They are also a kind of determinants. Then articles are considered as adjectives as they qualify nouns placed immediately after them. That is why they are not given a separate place in the parts of speech. So when we were learning about parts of speech, so you might have seen that among the 8 parts of speech,
यू डिडंट फाइंड द आर्टिकल्स। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है इसको भी हम लोग एडजेक्टिव्स माना जाता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स माना जाता है क्योंकि ये नॉन्स का पहले लगता है और नॉन्स को ये लोग क्वालिफाई करता है, इसलिए इसको हम लोग सेपरेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच में जगह नहीं दिया है, बिकॉज दे कम अंडर द एडजेक्टिव्स। देन ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अभी हम लोग बोला इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर यूज बिफोर अ नाउन और वर्ड व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नॉन टू द स्पीकर। दे आर यूज्ड इन जनरल और नॉन स्पेसिफिक टर्म्स। तो ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है क्योंकि ये जिस नॉन के आगे लगता है उस नॉन के बारे में हम लोगों को उसका बारे में खास एग्जैक्टली उसका जो आइडेंटिटी है वह हम लोगों को नहीं बताता है। हम लोग इसको सिर्फ जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। देन नेक्स्ट, द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज to refer to a specific noun or it is used before a noun whose identity is already known to the speaker। तो ये जो द है इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम लोगों को किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफ़र करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये हम लोगों को बताता है कि जिस नॉन या नॉन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग को उसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी है। देन नेक्स्ट, तो अभी आप लोगों को कुछ चीज़ याद रखना है। द डेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड विथ और बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो ये आर्टिकल्स ए और एन है इसको हम लोग सिर्फ सिंगुलर्स और काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ कर सकता है। क्यों? बिकॉज ए मीन्स वन एंड एन मीन्स वन। ए का मतलब है वन और एन का मतलब भी वन है। एग्जाम्पल, अ बॉल मीन्स वन बॉल, अ बॉल मीन्स वन बॉल, एन एप्पल मीन्स वन एप्पल। तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ कर सकता है। देन नेक्स्ट, वी कैनॉट यूज़ ए एंड एन विथ द प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल्स। तो हम लोग प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम लोग आर्टिकल्स ए और एन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बॉल्स, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बॉल्स प्लूरल है तो हम लोग ए इसका साथ यूज़ नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसको ए जो है आर्टिकल इसको हम लोग सिर्फ सिंगुलर के साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो सही क्या होना चाहिए? आई हैव अ बॉल, ये सही है। नहीं तो और कैसे बोल सकता है? आई हैव टू बॉल्स, ये भी सही है। either we should say I have a ball or I have 2 balls 3 balls like that. Then next, I have an apples, ये गलत है। एप्पल्स प्लूरल है तो इसका आगे में हम लोग आर्टिकल एन नहीं लगा सकते हैं। तो सही क्या होना चाहिए? आई हैव एन एप्पल, ये सही है, या आई हैव एप्पल्स, तो ये सही है। देन नेक्स्ट, अभी ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में है। आई ड्रिंक अ मिल्क, ये गलती है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसका आगे हम लोग ए नहीं लगा सकता है, ये दिस इज इनकरेक्ट। सो व्हाट इज करेक्ट? आई ड्रिंक मिल्क, ये करेक्ट है, या और आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये करेक्ट है। क्योंकि ये ग्लास जो काउंटेबल है, ग्लास को हम लोग गिन सकता है, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, तो इसलिए इसका आगे में हम लोग ए को लगा सकता है, लेकिन मिल्क का आगे में नहीं लगा सकता है बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी एन इंक, ये भी गलत है क्योंकि इंक जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका आगे हम लोग एन नहीं लगा सकते हैं। बट प्लीज़ गिव मी इंक, ये सही है सकता है। तो हम लोग इंक तो एग्जैक्टली हम लोग उसको गिनने नहीं सकता है 1 2 बोल के, तो इसलिए हम लोग उसका आगे में ए या एन नहीं डाल के हम लोग डायरेक्ट लिख सकता है, ये सही है। नहीं तो हम लोग ये भी बोल सकता है, प्लीज़ गिव मी सम इंक, ऐसा बोल सकता है, या प्लीज़ गिव मी अ बॉटल ऑफ मिल्क इंक, तो ये सही है। देन अभी ये है हम लोगों का इम्पोर्टेंट पार्ट, यूजेस ऑफ द आर्टिकल्स। तो तीनों आर्टिकल्स ए एन और द को
कहाँ कहाँ पर यूज़ करता है, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी तो आप लोगों को इसी का ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप लोग यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। यू सी, नंबर 1, यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? जनरली क्या होता है, आर्टिकल ए जो है, जनरली ए इज़ यूज विथ और बिफोर कॉमन नाउन्स और वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। तो क्लास 5 में है आप लोग, क्लास 4 में है आप लोग, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है। अगर आप लोग को वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अभी भी पता नहीं तो आप लोग क्लास 5 में या 4 में या 3 में आप लोग बैठने लायक नहीं है। इवन द चिल्ड्रन ऑफ किंडरगार्टन केजी का बच्चा भी जानता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है, क्लास 1 का बच्चा भी जानता है। तो जनरली ए इज यूज विद और बिफोर कॉमन नाउन्स और वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। तो जो भी वर्ड्स का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसका आगे में हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ करता है। जैसे कि अ बॉल में क्या है, बी जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग अ बॉल लिखा है। अ पेन में भी जो पी है वो कॉन्सोनेंट है। अ टेबल में टी कॉन्सोनेंट है। अ काऊ में सी कॉन्सोनेंट है। अ जीब्रा, तो जीब्रा में भी जेड जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका आगे हम लोग क्या लगाया, ए सब में आर्टिकल ए लगाया। लेकिन ये इतना सिर्फ नहीं है, अगेन ए इज ऑल्सो यूज विथ और बिफोर कॉमन नाउन्स और वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवेल बट हैविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो जनरली क्या होता है, आर्टिकल ए जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे में लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये नियम नहीं चलता है, तो इसका कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है। अभी जैसे एग्जांपल नंबर 1, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न, अ यूटेंसिल, अ यूनिट, अ यूटिलिटी, अ यूजफुल थिंग, अ यूनानिमस डिसीजन, अ यूनिक फीचर, ऐसा जैसे। तो अभी आप लोग यहाँ में देख रहा है, यू कैन सी दैट ऑल these words they are starting with the vowel u। तो वो वोवेल का आगे में तो नियम से ए नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए, इन वर्ड्स के आगे में ए लग रहा है। तो इसका कारण ये है कि इन लोग का प्रोनाउंसिएशन जो है वो मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड है। इन लोग का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, ऑल ऑफ द एबव वर्ड्स बिगिन विद द वोवेल यू, लेकिन बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक यू। हम लोग जैसे वाई ओ यू को बोलते हैं, यू उसका प्रोनाउंसिएशन आता है, वेयर वाई इज अ कॉन्सोनेंट, हैंस आर्टिकल ए इज यूज विद। तो उन लोग यू से शुरू जरूर होता है, वोवेल यू से शुरू होता है, लेकिन इन लोग का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या का साउंड है, ये वाई ओ यू का साउंड है। तो ये वाई ओ यू जो साउंड है, ये जो वर्ड है, इसका लेटर फर्स्ट लेटर क्या है, वाई है। तो वाई तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग इसको कॉन्सोनेंट हिसाब से उसका आगे में आर्टिकल ए डाल देते हैं, बिकॉज दे हैव द कॉन्सोनेंट साउंड। देन सेकेंड बी, नंबर 2, अ यूरोपियन, अ यूरो, अ यूकालिप्टस, अ यूनिक, अ यूलॉजी। तो ये जितने भी वर्ड्स है ये लोग वोवेल ई से शुरू हो रहा है, फिर भी इसका आगे में हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी जो साउंड है ई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वही साउंड है वाई ओ यू का साउंड है इसमें भी, और जो यू में वाई जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका आगे में भी हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है ओ से शुरू होने वाला जो स्पेशली वर्ड है वन वाला, अ वन मैन शो, a one man army, a one eyed man, a one rupee note। तो इसमें सब वर्ड क्या है, वन है, और वन जो क्या से शुरू होता है, ओ से। ओ तो वोवेल ज़रूर है, लेकिन इसका आगे में भी हम लोग आर्टिकल ए यूज़ करता है। इसका कारण ये है कि इसका जो साउंड है वो क्या का साउंड है, WAN, वन।
तो वन बोलने से फर्स्ट लेटर क्या आता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका आगे में हम लोग ए आर्टिकल ए को यूज़ करता है। तो उसका साउंड वन नहीं तो वन, हम लोग जैसे WON वन बोलता है उसका साउंड देता है। तो इसलिए इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है। दैट इज़ वाई वी प्लेस द आर्टिकल ए बिफोर सच वर्ड्स। Then next is we should never use a with proper nouns। जो आर्टिकल ए है वो हम लोगों को प्रॉपर नाउन्स के साथ में कभी यूज़ नहीं करना है। सो इट इज़ इनकरेक्ट टू सी अ नरेंद्र मोदी, अ नावम तुखी और अ नावम तकुम। जो है प्रॉपर नाउन जो आदमी का नाम होता है, किसी चीज़ का प्रॉपर नेम होता है, तो ऐसे प्रॉपर नेम्स का आगे में हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ नहीं करता है। सो यू कैन नॉट से दैट आई मेट अ नरेंद्र मोदी, आई सो अ नावम तकुम, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो हम लोग बोलते हैं आई मेट नरेंद्र मोदी, तो आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। देन नंबर 2, यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन। तो अभी ए का बारे में हो गया, अभी हम लोग एन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली क्या होता है यहाँ में भी, generally what happens, article n is used with or before nouns or words beginning with vowels। तो n आर्टिकल, जो आर्टिकल n है वो जनरली हम लोग ऐसे नाउन्स या वर्ड्स का आगे में यूज़ करते हैं जो कि वोवेल्स से शुरू होता है। जो वोवेल्स 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई भी जब पहले वर्ड में आता है तब हम लोग आर्टिकल एन को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल यू सी एन एंट, सो इन एंट ए इज ए वोवेल, सो एन एग, इन एग ई इज ए वोवेल। एन आइसक्रीम, अगेन आई आइसक्रीम, आई इज ए वोवेल इन आइसक्रीम। एन ऑरेंज, हियर आल्सो ओ इज ए वोवेल। एन अम्ब्रेला, सो यू इज ए वोवेल। देयरफॉर वी यूज़ एन बिफोर सच वर्ड्स that start with a vowel। But there are some exceptions to this rule। n is also used with or before nouns or words beginning with silent h। तो देखो h जो है, this h, it is a consonant, but in some words they are not pronounced। तो उसको हम लोग बोलते समय में एच को साइलेंट कर देते हैं, एच को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करता है। जैसे कि एन ऑनर, तो इसमें देखो ऑनर हम लोग एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, कहाँ से शुरू कर रहा है? ओ से, एन ऑनर। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ में भी एच साइलेंट है। एन आवर, तो इसमें भी एच साइलेंट है। एन एयर, एच साइलेंट। एन ऑनररी डिग्री, तो ये सब जितने वर्ड में है क्या एच साइलेंट है। तो एच के बाद में क्या आ रहा है? ओ नहीं तो ई आ रहा है। तो ओ और ई क्या है? वोवेल है, इसलिए इसका आगे में हम लोग आर्टिकल एन को लगा देते हैं। देन नेक्स्ट, एन इज आल्सो यूज विथ और बिफोर एक्रोनिम्स और शॉर्ट फॉर्म्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स बट है वोवेल साउंड्स। तो कुछ एक्रोनिम्स है, एक्रोनिम्स मतलब जिसको आप लोग एब्रीविएशंस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के आगे में भी एन लग जाता है, जो वोवेल से शुरू है, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन जिसका साउंड वोवेल का साउंड है। तो देखिए अभी एग्जांपल, NMP, NMLA, NMA, NMSc, NMBBS, NMPhil, NMTech, etc। तो all these words they begin with the consonant M, लेकिन उन लोग का जो साउंड है वो क्या का साउंड है? वोवेल ई का साउंड है। हियर एम हैज़ एम साउंड, ई एम साउंड, सो ई बीइंग अ वोवेल वी यूज़ एन विथ एक्रोनिम्स बिगिनिंग विथ एम। तो हम लोग बोलते समय आप लोग आवाज़ को ध्यान से सुनना है, आँख से देख के डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा। तो आप लोगों को साउंड को फॉलो करना है। तो जैसे MP बोलते समय में आप लोगों को क्लियरली ई का साउंड आएगा,
EMMP, तो इसलिए हम लोग उसका आगे में N लगा देते हैं। तो ऐसे एक्रोनिम्स जो M से शुरू होता है उसका आगे में हम लोग आर्टिकल N को यूज़ करते हैं। देन देर आर सम एक्रोनिम्स बिगिनिंग विथ L आल्सो, लाइक LLB एंड LLM। तो इसमें भी क्या है कि हम लोगों को E का साउंड सुनाई देता है। देखो कैसे तोड़ के लिखने से कैसा था, LLB या LLM, तो इसमें भी E का साउंड है, वोवल E का साउंड है, इसलिए हम लोग इसके आगे में भी आर्टिकल N को डालते हैं। फिर देखो NSDO, इसमें भी क्या है कि S में ESSDO, तो इसमें भी E का साउंड है, वोवल का साउंड है, इसलिए हम लोग आर्टिकल N यूज़ करते हैं SDO के आगे। देन NHIV, तो इसमें भी क्या H को बोलते समय में A का साउंड आता है, HIV, तो इसलिए वोवल्स, इसमें भी वोवल A का साउंड है, इसलिए हम लोग इसका आगे में NHIV, या हम लोग जैसे बोलता है NHIV पेशेंट। So again, article N is also not used with proper nouns. It is incorrect to say N Om Prakash Yadav और N अमित शाह। तो हम लोग प्रॉपर नाउन्स के आगे में आर्टिकल N को भी यूज़ नहीं करता है। So it does not sound very nice when we say I met N Om Prakash Yadav और I met N अमित शाह। तो ये हम लोग आदमी का नाम का आगे में, प्रॉपर नाउन का आगे में आर्टिकल N को भी यूज़ नहीं करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। तो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूजेस क्या क्या है, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूजेस थोड़ा लंबा चौड़ा है। सो द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड, वन, कंडीशन वन, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो अभी हम लोग शुरू में जो एग्जांपल दिया था, आई एट द एप्पल, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बोलता है तब हम लोग आर्टिकल द को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द एग्स यू गेव मी वेर रोटन, दुकानदार से अंडा खरीदा था, वो ख़राब निकला, तो बोलेगा वो पर्टिकुलर एग्स जो तुमने दिया था वो ख़राब निकला। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द particular eggs given by that particular shopkeeper, that is why we use the eggs. We shall go to the picnic, तो इसमें द पिकनिक क्यों डाला, हम लोग ए पिकनिक भी लगा सकते हैं या हम लोग वी शैल गो टू पिकनिक भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ में द पिकनिक लगाया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पिकनिक दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड। तो हाँ, अभी एक दो दिन में हम लोग पिकनिक जाएगा तो वो पर्टिकुलर पिकनिक के बारे में बोला जा रहा है, या जैसे हम लोग अपने स्कूल में पिकनिक मनाता है तो उस पिकनिक में जाएगा बोल के, दैट इज वाई द पिकनिक। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पिकनिक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एड्रेसिंग द डेलीगेट्स, तो हियर आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर country India, and we are talking about the particular delegates that is to be addressed by the Prime Minister. Next, when a noun represents a whole class, जब एक कॉमन नाउन को हम लोग पूरा जाति के लिए यूज़ करते हैं उस समय भी उसका आगे हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो इसमें क्या है कि हम लोग एक गाय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग जब द लगा देता है तो इसका मतलब हम लोग पूरा गाय जाति के लिए बोल रहा है। यहाँ में वी आर टॉकिंग अबाउट द होल काउ फैमिली। देन द टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल, तो इसमें भी क्या है कि हम लोग वो एक टाइगर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग पूरे टाइगर समुदाय के बारे में बोल रहे हैं, द होल क्लास ऑफ टाइगर वी आर टॉकिंग अबाउट। देन सी विथ सुपरलेटिव्स, तो हम लोग पढ़ा है एडजेक्टिव का अंदर में, एडजेक्टिव से 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जब एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है उसका साथ में उसका आगे में हम लोग द लगाता है। फॉर एग्जांपल, राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यू सी, तो बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसलिए हम लोग उसका आगे में द लगाना है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सो अगेन हियर हाईएस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट, that is why we have preceded the before highest. Then D, with words such as first, last, next, only, same, previous, तो कुछ वर्ड्स है
जिसका आगे में जिससे पहले हम लोग द लगाता है, जैसे वो है फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम, प्रीवियस। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इन द क्यू, जो लाइन में पहले खड़ा है, द प्रीवियस नाइट, पिछले रात, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द ओनली सन, सिर्फ जो एक बच्चा है, द सेम पर्सन, वही आदमी। तो ऐसा वर्ड्स का आगे में भी हम लोग द लगाते हैं। देन नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड और यूनिक। तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऐसा नॉन्स के आगे भी द लगता है जो इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में जो सिर्फ एक पीस है, अकेला है और जो यूनिक है, उसका जैसे और कोई नहीं है, उसका आगे में हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। एग्जांपल द सन, देखो जो सन है वो तो एक ही पीस है। द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द मिल्की वे, द सप्तऋषि, द पोल स्टार, द जुपिटर, द मार्स, द सैटर्न, द नेपट्टून, द प्लूटो, द वीनस, जितना प्लैनेट्स का नाम भी का आगे में भी हम लोग आर्टिकल द को लगाते हैं। देन एफ, बिफोर अ नाउन विच इज मेंशन और रिपीटेड वंस अगेन। तो ऐसा एक नाउन के बारे में, कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा एक नाउन के बारे में भी हम लोग नाउन का आगे में भी लगाता है जिसको सेकेंड बार रिपीट किया गया है। जैसे वी वेंट टू हर हाउस, द हाउस वाज ब्यूटीफुल। देखो हम लोग, क्योंकि ये जब सेकेंड बार जब हाउस को यूज़ किया, उससे पहले हम लोग एक बार हाउस को यूज़ कर लिया फर्स्ट सेंटेंस में, वी वेंट टू हर हाउस। तो उसी हाउस के बारे में हम लोग जब फिर दोबारा बोलते हैं तब उसमें हम लोग उसका आगे ड लगा देंगे, द हाउस वाज ब्यूटीफुल। वन मोर एग्जाम्पल, आई सो स्नेक इन माई गार्डन, द स्नेक वाज अ कोबरा। देखो सेकेंड बार में वो वही स्नेक के बारे में बोल रहा है जो हमने गार्डन में देखा। तो हम लोग जब उसको दोबारा उसका बारे में बोलते हैं, सेकेंड बार उसको जो रिपीट करते हैं, तब उसका आगे हम लोग द लगा देते हैं। देन जी, बिफोर अ प्रॉपर नाउन प्रिसीडेड बाय एन एडजेक्टिव। तो जब एक प्रॉपर नाउन है, उसका आगे में एक एडजेक्टिव है, तो हम लोग उस एडजेक्टिव से पहले द लगा सकते हैं। देखो द इमॉर्टल शेक्सपियर, तो इसमें शेक्सपियर जो है वो है प्रॉपर नाउन, आदमी का नाम है, और इमॉर्टल हो गया एडजेक्टिव, तो उसका आगे हम लोग द लगा सकते हैं। फिर द ग्रेट सीजर, तो सीजर प्रॉपर नाउन, आदमी का नाम है, और ग्रेट जो एडजेक्टिव है, तो इसका आगे हम लोग द लगा सकते हैं, द लगाया। द विट्टी बीरबल, तो बीरबल इज द प्रॉपर नाउन, विट्टी इज द एडजेक्टिव, so we can place the definite article the before the adjective. The cunning शकुनी मामा, तो शकुनी मामा आदमी का नाम है और कैसा था, एडजेक्टिव कनिंग है, तो उसका आगे हम लोग आर्टिकल द लगा दिया। देन नेक्स्ट H, व्हेन एडजेक्टिव रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन। जब कोई एडजेक्टिव को हम लोग किसी ग्रुप को, किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम लोग उसमें आर्टिकल द को उससे पहले लगाते हैं। जैसे कि द पुर, ये देखो पुर जो है एडजेक्टिव है, लेकिन द पुर मतलब क्या हो गया, हम लोग जब द लगा देते हैं तो क्या होता है, द पुर मतलब जितने भी गरीब लोग के लिए, जितने भी गरीब है उसके लिए ये पुर जो है ये यूज़ किया गया है। द रिच, द रिच का मतलब है कि ये कोई धनी आदमी है, ऐसा नहीं है। द रिच मतलब जितने भी वेल्दी लोग हैं, जितने भी धनी लोग हैं उसके लिए। द वीक, जितने भी कमज़ोर लोग हैं। द ओल्ड, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं। द डाउन ट्रेडन, जो मतलब बहुत पिछड़ा हुआ जाति का लोग। द ओप्रेस्ड, जिसको समाज में हमेशा उभरने नहीं देता है, हमेशा दबा के रखता है, ऐसा लोग। देन आई, विथ ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो में बताया था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। तो ऑर्डिनल्स का आगे में भी हम लोग द को लगाता है। देखो एग्जांपल, ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द मीटिंग। तो देखो ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल नंबर है, तो इसका आगे हम लोग द लगा दिया। द फिफ्थ लेसन ऑफ द बुक वॉज डल। तो इसमें अगेन फिफ्थ जो है वो है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर को बताने वाला, तो इसलिए उसका आगे हम लोग द लगा दिया। तो किताब का फिफ्थ लेसन जो बहुत बोरिंग था। माई ऑफिस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो अगेन हियर अच्छी थर्ड जो है ओरिजिनल नंबर है, तो इसका आगे में हम लोग द लगाता है। देन विद द नेम्स ऑफ, तो क्या किस किस नाम का आगे में द लगता है। देखो पहला है माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स। तो दुनिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखला है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनके नाम के आगे हम लोग आर्टिकल द को लगाते हैं। एग्जांपल द आल्प्स, द हिमालयास, द काराकोरम, ये सब पर्वत श्रृंखला का नाम है, माउंटेन रेंजेस का नाम है। द माउंट एवरेस्ट,
ऊंचा पहाड़ का नाम है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है. द कंचनजुंगा, अगेन द नेम ऑफ माउंटेन पीक. द करादादी, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ a mountain peak which is in our own state, Arunachal Pradesh. Then next, with the names of rivers, seas and oceans. तो नदियों के नाम, सागर के नाम और महासागर के नाम के आगे भी हम लोग आर्टिकल द को यूज़ करते हैं. जैसे रिवर्स है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र. देखो रिवर्स का नाम का आगे हम लोग द लगाए. देन सागर का नाम का आगे द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, ये सागर का नाम है. द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये है महासागर का नाम, ओशंस का नाम. देन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के आगे भी हम लोग आर्टिकल द को लगाते हैं. फॉर एग्जांपल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देखो ये आइलैंड का नाम है, उसका आगे द लगाया. द ब्रिटिश आइल्स, तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसके आगे भी हम लोग आर्टिकल द लगाया. देन हिस्टोरिकल एंड फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. जो ऐतिहासिक धरोहर है या इमारत है, उसका नाम का आगे में भी हम लोग द लगाते हैं. एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट, द राष्ट्रपति भवन, द जंतर मंतर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देर आर many historical monuments and buildings in India as well as in the whole of the world. Then with the names of famous books, newspapers and magazines. तो प्रसिद्ध पुस्तक, समाचार पत्र और मैगजीन्स का नाम का आगे में भी हम लोग द को लगाते हैं. एग्जाम्पल द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब बुक्स का नाम है. द अरुणाचल टाइम्स, द अरुणाचल टाइम्स, द असम ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेक्कन क्रॉनिकल, ये सब न्यूज़पेपर्स का नाम है. द फ्रंट लाइन, द स्पोर्ट्स स्टार, ये सब मैगजीन्स का नाम है. देन कंट्रीज विच आर यूनियन ऑफ स्टेट्स. और कुछ देश है जो छोटे छोटे दो देशों से या स्टेट से मिल के बनता है, उसका नाम का आगे में भी आर्टिकल द लगता है. एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, ये पहले था अभी तो नहीं है. द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो ये सब जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स या दे आर यूनियन ऑफ स्मॉलर कंट्रीज. देन विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज का नाम का आगे भी हम लोग द लगाता है. फॉर एग्जांपल द गांधीज, द नेहरूस, द पटेल्स, द शर्मास, द भाटियास, द यादव्स, लाइक दैट. देन बिफोर with the name of some important events in history. तो हिस्ट्री में कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट जो घटना हुआ है, जो इवेंट्स हुआ है, उनके आगे भी हम लोग आर्टिकल द को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सिपाही म्यूटिनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द कारगिल वॉर, लाइक दैट. तो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जो इवेंट्स है, उसका आगे में हम लोग आर्टिकल डाला होते हैं. फिर अभी हम लोग ध्यान में और एक चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एन एन द. तो ऐसा है कुछ जगह में हम लोगों को आर्टिकल यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है. तो बिफोर प्रॉपर नाउन्स, मैंने पहले बताया, प्रॉपर नाउन्स के आगे में हम लोग आर्टिकल्स को, कोई भी आर्टिकल्स को नहीं लगा सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो इसमें क्या, ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश जो है प्रॉपर नाउन्स है, इसका आगे में हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगा सकता है, और यहाँ लगाया भी नहीं है. देख, ईटानगर के आगे में भी कोई आर्टिकल नहीं आया, अरुणाचल प्रदेश के आगे में भी कोई आर्टिकल नहीं आया. बिफोर मटेरियल नाउन्स जो होता है सोना चांदी, ये सब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आयरन, ये सब जितना है ये मटेरियल्स का नाम है. तो इसका आगे में भी हम लोग कोई आर्टिकल नहीं डालता है. बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग जब जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, नैरो सेंस में, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ नहीं करके जनरल वाइडर सेंस में यूज़ करता है, तब हम लोग उसका आगे में भी कोई आर्टिकल नहीं डालता है. हम लोग यहाँ में द लाफ्टर, ए लाफ्टर नहीं बोल सकता है. तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. तो इसमें भी हम लोग
ए ट्रूथ या द ट्रूथ नहीं बोल सकते हैं. ट्रूथ इज बेटर. सो बिफोर कॉमन नाउन्स विच व्हेन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस. तो कॉमन नाउन को जब थोड़ा ज़्यादा बिगर सेंस में, वाइडर सेंस में यूज़ करते हैं, उस समय में भी हम लोग उसका आगे में आर्टिकल नहीं लगाता है. हम लोग नहीं बोल सकता द पोइट्स लव नेचर या द सिटीजन्स आर द एसेट्स ऑफ द कंट्री. हम लोग नहीं बोल सकते हैं. और ए और एन का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है. Then next, before the days of the week and months of the year, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक जितना भी मंथ्स का नाम है और डेज का नाम है, उसका आगे में हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. तो जितना प्लूरल्स का आगे में और अनकाउंटेबल नाउन्स का आगे में हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ. तो बिफोर ए लैंग्वेज, जो भाषा होता है, लैंग्वेज का आगे में भी हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाता है. जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आई एम लर्निंग द इंग्लिश, एन इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं. हम लोग चाइनीस इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो हम लोग यहाँ में द चाइनीस या ए चाइनीस नहीं बोल सकते हैं. देन बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, जैसे कि मदर, फादर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, ये जितना भी रिलेशंस का नाम है, उसका आगे में भी हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाता है. सो दिस वाज अबाउट द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. So please go through the contents, the video as well as the notes that I will send you thoroughly and learn about the article.